Okay, welcome back everyone. Now, so let us see M3.3. Okay. Now tell me M3.3 में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? Just type in chat box. My voice is low. Okay, wait. Okay, what about now? Okay, it is clear and loud. Or Karishma, you can raise your device volume. Okay. So students, quickly type your doubts of M3.3. If you have tried, if you have not tried, just tell me. So we can see all unique questions. Okay. Okay. What about others? Okay. So majority of have not tried. Okay. No issue. Okay. So let me show you different questions or questions of different types that you can expect from M3.3. And I can expect that at least M3.3 का आपका वो तो हो ही गया होगा, right? Formula सबने लिख दिया है? Please give me some response about formula. Right. Formula सबने लिख दिया, just ये try नहीं हो पाया. Okay, no issue. Okay, so see over here. And I have explained you each and every formula M3.3. ओके जितना मुझे याद है टेबल 2 मैंने लिखने के लिए मना किया था, यस वो मैं आपको बताऊंगा. टेबल 1 मैंने बोला था वो आप डायरेक्ट याद रखना, काम आएगा. और फॉर्मूला 3 के सारे फॉर्मूला तो समझा दी थी, नहीं है आपके पास उसमें कॉट ए प्लस बी एंड कॉट ए माइनस बी. ठीक है, तो वो आप डिराइव कर सकते हो इजीली कॉस बाय साइन करके. ओके, तो वो मैं आपको पहले दो फॉर्मूला दिखा देता हूँ फटाफट. सो जो फॉर्मूला हमने नहीं देखी थी पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको वो टाइप हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस दिखाता हूँ. ओके. ओके. हाँ. सो फर्स्ट सी ओवर हियर. सो let me explain you first cot a plus b, cot a minus b. Then we will see those section. Okay, Ovesh? So see you here. Cot a plus b. So you can derive this formula. How we have derived formula of tan a plus b is cos a plus b by sin a plus b. हाँ जितेंद्र क्या रिपीट करूँ एग्जैक्टली, अभी मैंने शुरू ही किया है. ओके, व्हाट शुड आई रिपीट? So it is cos a plus b by sin a plus b. So if we simplify it further, therefore cot a plus b. Chalo, who will tell me formula of cos a plus b? Quickly. What is the formula of cos a plus b? Type in chat box na quickly. Very good. Cos a cos b minus sin a sin b. So what about sin a plus b? What is the formula of sin a plus b? Sin a cos b plus
हाँ, यहाँ पे तो कॉट ही है ना, यहाँ पे तो कॉट है। ओके, वो कॉट की हमें फॉर्मूला निकालनी है। ओके, सो साइन ए कॉस बी प्लस cos a sin b। ओके, चलो अब नाउ if you observe its formula, so we want cot, so we will divide with sin a sin b on numerator and denominator. So if I divide numerator and denominator by sin a sin b, so observe, so this will become is equal to cos a cos b by sin a sin b, that is cot a cot b, minus sin a sin b by sin a sin b, it is 1, divide by sin by cos, वो आपका क्या हो जाएगा? Right, I'm dividing with sin, sorry, sin a cancel हो जाएगा, cos b by sin b, that is cot b, and here it will become cot a. So therefore cot a plus b will be equal to cot a cot b minus 1 divided by cot b plus cot a. Okay. So is it clear now? Okay, great. राइट, इन सेम वे अब आप कॉट ए माइनस कॉट बी भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, तो tan तो आपने ऑलरेडी याद रखा है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इन सेम वे अब ये आपको याद रखने के लिए डिनोमिनेटर से शुरू करना है। इफ यू वांट टू राइट फॉर्मूला ऑफ cot a plus b, so first of all this cot of a plus b will be equal to, आप डिनोमिनेटर से शुरू करना है, रिवर्स शुरू करना है b से, so cot b प्लस cot a। अब tan के केस में क्या होता था, 1 माइनस tan a tan b, यहाँ पे हम करेंगे cot b cot a और cot a cot b, जिस वे में लिखना हो माइनस, तो नीचे भी रिवर्स शुरू करना है, ऊपर भी रिवर्स शुरू करना है। इज इट क्लियर? राइट, याद रखने के लिए। सो cot ऑफ a प्लस बी एंड cot ऑफ a माइनस बी। अब आपको दिखाता हूँ आपका सेक्शन 1 की सारी फॉर्मूला कहाँ से आई है। तो sin 45 cos 45 tan 45 और sin 15 cos 15 tan 15। ओके, हाँ, sin a प्लस बी, हाँ वो रह गया था, ठीक है, अभी राम लास्ट टाइम भी रह गया था, बट विल सी टुडे इफ पॉसिबल। सो क्वेश्चन 1, सॉरी, और सेट वन में जितने भी फॉर्मूला है उसको समझो। सो साइन 15 की वैल्यू, तो साइन 15 कॉस 15 की वैल्यू हमने लास्ट टाइम निकाली थी, राइट। कैसे निकाली थी? आइदर यू कैन यूज 45 माइनस 30 और यू कैन यूज 60 माइनस 45, ठीक है। तो वहां से हमें साइन 15 मिल गया था, इजंट इट? राइट, इसी तरीके से कॉस 15 भी मिल जाएगा, और साइन 15 हमें मिला था √3 माइनस 1/2 √2, और cos 15 हमें मिला था √3 प्लस 1/2 √2। Okay, so here just wait for 1 minute. So now see here, in the same way अगर वहां से tan 15 लाना है, so how you can get value of tan 15? Tan 15 will be equal to sin 15 by cos 15। Is it clear? Okay, तो इन दोनों का आप डिवाइड करोगे तो 2 √2 कैंसिल हो जाएगा, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, then after taking conjugate we will get it is at 2 minus √3 or minus √3 plus 2। Okay, so I hope पहले इतना क्लियर हो गया होगा। Okay,
नाउ सी, अब 18 डिग्री, 22.5 डिग्री और 36 डिग्री समझाने के लिए पहले मुझे आपको सेक्शन 4 समझाना पड़ेगा कि सेक्शन 4 की फॉर्मूला कहाँ से आई, फिर उसके बेस से आपको ये पता चलेगा। ठीक है, तो 18, 22 हाफ एंड 36 की मैं समझा रहा हूँ, उससे पहले चलो फटाफट देखते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 इज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। ये पहले मैं समझा देता हूँ, समझो कि कैसे उसे याद रखना है और वो किस तरीके से आया। तो लेट अस सी योर सेक्शन 4। सबसे पहली आपकी फॉर्मूला है दैट इज साइन 2a। ठीक है, अब साइन 2a कैसे आई फॉर्मूला समझो। तो साइन 2a यू कैन राइट साइन 2a एज साइन a प्लस ए, इजंट इट? 2a मतलब a प्लस ए हो जाएगा। So here if I simplify, it is sin A cos B, B is nothing but A only, plus cos B sin A, cos B is nothing but A only, plus A into sin A. So it is sin A cos A plus sin A cos A, it is 2 times sin A cos A. तो अब पता चले पहली फॉर्मूला कहाँ से आई। पहली फॉर्मूला तो आपको क्लियर हो गई होगी अब। सो पहली फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखें, sin 2A। ओके, वेट, so here your sin 2A will be equal to 2 sin A cos A। ओके, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत काम आएगी। तो सारी फार्मूला इंपॉर्टेंट ही है। तो साइन 2A इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। चलो आफ्टर दैट वो आपको tan के टर्म में भी दी गई है, 2 tan ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है, उसको फिलहाल रहने दो क्योंकि tan वाले में तीनों फॉर्मूला आपको साथ में याद रखाऊंगा। ठीक है, कि कैसे याद रखनी है। ओके, चलो अब cos 2A की फॉर्मूला देखो। ओके, so let us see second formula, that is of cos 2A। so same way इससे आप लिख सकते हो cos A plus A, now cos A plus B। ओके, तो करिश्मा रिपीट द फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला, साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। दिस इज योर फॉर्मूला एंड साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला अप्लाई की थी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए। ओके, नाउ सी, सो cos 2a इज cos a प्लस ए, तो ये आपका हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, और a आपका a ही है दोनों जगह, b इक्वल टू a। so this will be equal to cos into a cos a, that is cos square a, माइनस साइन a into sin a, that is sin square a। तो ये आपको cos 2a की पहली फॉर्मूला मिली, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। इज इट क्लियर नाउ? पहले फिर जब आप cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, आइडेंटिटी जो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, दैट आवर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं cos स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर सकता हूँ, cos स्क्वायर ए कैन बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड इन अ सेम नोट sin square a can be equal to 1 minus cos square a। ओके, सो हियर अगर आप sin square a को कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, या पहले cos स्क्वायर a को कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो समझो ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर इधर रखोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इन सेम वे अगर साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करोगे 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो माइनस 1 यहाँ पे आएगा, माइनस cos स्क्वायर आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके तो हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। तो ये तीनों आपकी फॉर्मूला है cos 2a की। ओके, आई होप ये तीनों फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएंगी। tan वाली याद तो साथ में दिखाऊंगा एक साथ। ठीक है, पहले इसको समझो। तो साइन 2a आपको याद रखना है 2 साइन ए कॉस ए, cos 2 आपको याद रखना है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, और वहां से ये तीनों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है एंड 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। Is it clear now? Please give me some response. Okay. चलो, तो आपका साइन 2a हो गया, cos 2a हो गया।
लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर आपका है tan 2a. अब यहाँ से मैं आपको सारी चीजें सिखा सकता हूँ tan के टर्म्स में. ठीक है, फिर हम 3a वाला देखेंगे, तो समझो यहाँ पे आप. tan 2a, अब ये भी इसी तरीके से हमें मिलेगा, दैट इज tan a प्लस ए. नाउ tan a प्लस बी की फॉर्मूला क्या है, दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. So it is equal to tan a plus tan a, that is 2 tan a divided by 1 minus tan square. Is it clear? ये tan 2a की फॉर्मूला 2 tan a by 1 minus tan square. अब इसी तरीके से साइन और कॉस की फॉर्मूला भी है tan के टर्म में. ओके, तो tan 2a की सिमिलर फॉर्मूला है sin 2a की, राइट. तो वो तीनों फॉर्मूला हम साथ में याद रखेंगे, तो मैं सारी फॉर्मूला यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ. तो tan 2a की फॉर्मूला अभी हमने देखी, इट इज 1 और 2 tan a by 1 minus tan square a. चलो इन सेम नोट, अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है साइन 2a की, तो साइन 2a आपको सिमिलरली मिलेगा 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है. आप पूछोगे सर ये कैसे, तो इसमें हम LHS से RHS नहीं जाएंगे, वी शुड गो फ्रॉम RHS टू LHS. समझो, तो यहाँ पे हमारी RHS पे है फॉर्मूला 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है. and we all know that 1 plus tan square a is sec square a. So 2 tan a को अभी as it is रहने दो. 1 plus tan square a is sec square a. Now, tan a is your sin by cos. Sec is your 1 by cos. 1 इधर डिवाइड by cos square a. एक एक cos cancel. So it is 2 sin a into cos a sin 2a. Is it clear now? Okay, ये फॉर्मूला कैसे आई? Okay, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं. Now, फाइनल फॉर्मूला अबाउट cos 2a. cos 2a में आपका आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a. ओके, अब ये भी समझो कैसे आएगा, सेम RHS टू LHS. ओके, सो हियर आवर RHS इज 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a. वी ऑल नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर आपका हो जाएगा sec स्क्वायर a. सो 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई sec स्क्वायर a. sec स्क्वायर a दोनों जगह पे डिवाइड हो जाएगा. So it is 1 divided by sec square a minus tan square a divided by sec square a. Is it clear? Now 1 by sec, that is cos square a. tan sin by cos, ये 1 by cos समझना, ये टर्म में tan आपका होगा sin by cos, sec होगा आपका 1 by cos, ये कैंसिल, तो सिर्फ sin बचेगा and whole square. So cos square a minus sin square a. And we all know that this is the formula of cos 2a. Okay. सो यहाँ पे tan के टर्म्स में ये तीनों फॉर्मूला आपको एक साथ याद रखनी है. ओके, सॉरी. सो ये फॉर्मूला सबसे पहले tan 2a की याद रखो कि tan 2a में आपका डिनोमिनेटर में पहले तो 1 माइनस tan स्क्वायर आ जाएगा. फिर सेम फॉर्मूला है, सेम है आपका sin 2a के लिए, तो माइनस की जगह उस पर बस प्लस आ जाएगा. ओके, एंड cos 2a की फॉर्मूला में 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर. फिर याद रखने के लिए आप ये भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे माइनस डिनोमिनेटर में सिर्फ tan के केस में आएगा, क्योंकि tan 2a, तो tan a प्लस b की फॉर्मूला पे अप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में माइनस आता है, राइट. बाकी दोनों जगह पे डिनोमिनेटर में प्लस आएगा. सी हियर केयरफुली, बाकी दोनों जगह पे डिनोमिनेटर में प्लस है. ओके, सिर्फ tan 2a की फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में माइनस आएगा. इज इट क्लियर नाउ?
ओके, सो अब यहाँ से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं सबसे पहले 22.5 डिग्री की, साइन 22.5, कॉस 22.5, और वहां से टेन 22.5 की सेक्शन 1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डबल एंगल की फॉर्मूला है अब। तो अगर यहाँ से आपको साइन ए की फॉर्मूला चाहिए या साइन स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर को आप सब्जेक्ट बनाओगे, तो इट विल बी कॉस 2a से। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ डायरेक्ट। सो अब मैं यहाँ से आपको सेक्शन 1 में 22.5 डिग्री की फॉर्मूला कहाँ से वो दिखा रहा हूँ। ओके, सो लेट अस सी दिस। Okay, am I audible, students? You can hear me, right? Okay, now see. So let us see now this formula. Let us go back to section 1 again. Okay, now see. So now only we learn that cos 2a equal to 1 minus 2 cos square a, sorry, 2 cos square a minus 1, right, or 1 minus 2 sin square. So from here, if you compare cos 2a with this final term, that is 1 minus 2 sin square a, so 2 sin square a will become 1 minus cos 2a, isn't it? So therefore, sin square a will become 1 minus cos 2a divided by 2. Okay, 1 minus cos 2a divided by 2. Now I have to find value of a equal to 22.5 degree. So if I take a equal to 22.5 degree, so what will be my 2a, students? Type in chat box quickly. Please give me some response. Very good. If a equal to 22.5 degree, then 2a equal to 45. Check again, 55 नहीं होगा. Okay, so therefore sin square 22.5 degree equal to 1 minus cos 2a. 2a is 45 degree by 2. चलो यहाँ whole divide by 2. So what is the value of cos 45 degree? Cos 45 is 1 upon root 2 whole divide by 2. So is equal to root 2 minus 1 whole divide by 2 root 2. Okay, and this is sin square. तो अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट. ओके, सो देयरफॉर sin 22.5 degree will be equal to square root of root 2 minus 1 by 2 root 2. Okay, now see here. Can I multiply and divide with root 2a inside the square root? See. So inside now I'm having 2 into root 2 into root 2, that is 2. 2 into 2 is 2 square. And in numerator, I'll be having root 2 into root 2, 2 minus root 2 into 1, 2 minus root 2. So here, my numerator will be square root of 2 minus root 2 divided by 4 का square root आपका हो जाएगा 2. So square root of 2 minus root 2 divided by 2. It is your sin 22.5 degree. क्या ये पता चल गया students? Sin 22.5 degree कहाँ से आया? Please give me some response. Okay. Now,
इसी तरीके से फिर आप cos 22.5 डिग्री भी निकाल सकते हो। ओके, एंड cos 22.5 डिग्री निकल गया, या यहाँ से निकाल सकते हो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर वहां से आप tan 22.5 डिग्री निकाल सकते हो। ओके, विच इज sin बाई cos। ओके, नाउ सी हियर। अब उसके बाद आपके पास फॉर्मूला है sin 3a cos 3a tan 3a। सो अब वो देखो वो कहाँ से आई और वो याद कैसे रखनी है। So again, let us come back to section 4. Sin 3a, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला अप्लाई करूंगा साइन ऑफ a प्लस 2a। ओके, तो साइन a cos b प्लस cos a sin b, इजंट इट? ऐसा हो जाएगा पहले। चलो अब इज इक्वल टू साइन a cos 2a की हमारे पास फॉर्मूला है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंड 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो उसमें से कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे रखूंगा? राइट, तो समझो यहाँ पे वो डिपेंड करेगा आपकी सेकंड टर्म पे। सेकंड टर्म में यहाँ पे आपके पास है cos a। अब sin 2a को आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 2 sin a cos a। तो यहाँ पे आपके पास आएगा cos स्क्वायर। अब cos 2 आप रखोगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो यहाँ पे भी 2 cos स्क्वायर इंटू साइन ए है, यहाँ पे भी 2 cos स्क्वायर इंटू साइन ए है। 4 cos स्क्वायर इंटू साइन ए होगा, फिर उसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और एल्स अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर रख रहे हो तो 1 माइनस 2 साइन क्यूब हो जाएगा। फिर cos स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करके कर सकते हो। सो यू आर हैविंग 2-3 वेज। ओके, सो लेट अस राइट हियर 2 cos स्क्वायर a minus 1. Okay, this is your formula of cos 2a, that is 2 cos square a minus 1. So is it clear now? Okay, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। So it will be 2 times cos square a into sin a minus sin a plus 2 times cos square a into sin a. Okay, now 2 plus 2, right? ये भी आपका 2 cos square a sin है, ये भी आपका 2 cos square a sin है। So 2 plus 2 4 cos square a sin a minus sin a. ओके, अब आप पहले साइन ए को कॉमन निकाल सकते हैं, या अदरवाइज जैसा है वैसे भी रहने दे सकते हैं। सो cos स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो दिस विल बिकम 4 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस साइन ए। सो देयरफॉर, और दिस विल बी इक्वल टू, ये साइन आपका दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4 इंटू साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए minus sin a. Now 4 sin a minus sin a, that is 3 sin a minus 4 sin cube a. Okay, so this is your formula of sin 3a. Okay, so here we got sin 3a equal to 3 sin a minus 4 sin cube a. Is it clear? अब ये फॉर्मूला कहाँ से आई है? राइट, उसी तरीके से आप cos 3a की फॉर्मूला पे निकाल सकते हो। हाँ, तो वही किया ना करिश्मा, sin 2a की फॉर्मूला रखी है ना, sin 2a की फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे रखी है, देखो। This is your sin 2a, it is 2 sin a cos a. ओके, तो यहाँ पे आपकी sin 3 की फॉर्मूला इस तरीके से आई है। इसी तरीके से क्या आप cos 3 की फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? ओके, सो cos 3a विल बिकम 4 cos स्क्वायर, आपको मॉड्यूल में प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट इज 4 cos क्यूब a। 4 cos क्यूब a आएगा, मॉड्यूल में cos स्क्वायर a दिया गया है। सो करेक्ट इट, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ओके, तो इस तरीके से आपको sin 3 एंड cos 3 की फॉर्मूला मिलेगी। cos 3 की फॉर्मूला आप घर से ट्राई कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस।
So sin 3 equal to 3 sin a minus 4 sin cube a, cos 3 equal to 4 cos cube a minus 3 cos a. Okay. और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं. For sin you can remember 34 and for cos you can remember 43. Okay. Because ये sin 3 के लिए आपका 34, ये 3 4. Okay. And cos के लिए आपका 43 है 4 3. ये आपका 4, ये आपका 3. Okay, so 3 sin a minus 4 sin cube a, 4 cos cube a minus 3 cos. और वहीं 3 4 से और 4 3 से एक और चीज हमने याद रखी थी, समझो. वो चीज क्या थी कि sin 14 में इंक्रीज होता है एंड cos 34 में इंक्रीज होता है. तो वो चीजें ध्यान रखना, उसमें आपका वो नहीं होना चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए. तो sin 14 में इंक्रीज होना चाहिए, cos 34 में इंक्रीज होना चाहिए, राइट. sin 3a के लिए यू कैन रिमेंबर दिस नंबर्स 3 एंड 4. cos 3a के लिए यू कैन रिमेंबर दिस नंबर्स 4 एंड 3. हाँ करिश्मा, उसका डेरिवेशन सेम है, राइट. बाकी cos और sin फंक्शन दोनों अलग हैं. cos 3 sin 3 का डेरिवेशन सेम है. इन अ सेम वे अब अगर आप tan 3a देखोगे, राइट, तो tan 3a की फॉर्मूला भी आप इसी मेथड से डिराइव कर सकते हैं, राइट. यू कैन राइट फर्स्ट tan a प्लस 2a. तो ये आपका हो जाएगा tan a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan 2a. फिर इन दोनों जगह पे, इन दिस बोथ द प्लेसेस, यू कैन पुट tan 2a इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको वैल्यू मिलेगी. ओके. और वो वही फॉर्मूला होगी जो आपको दी गई है. यू कैन ट्राई इट फ्रॉम होम. सो योर tan 3a विल बिकम 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a. Okay. So 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a. So is it clear now? So tan 3 equal to 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a. चलो अब इसके बेस से मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, राइट. सेक्शन 1 में जो आपकी फॉर्मूला है दैट इज 18 डिग्री एंड 36 डिग्री. ठीक है, वो फॉर्मूला कहाँ से आई है समझना. So 18 degree, 36 degree. We all know that यहाँ से आप 54 डिग्री वाली फॉर्मूला भी निकाल सकते हो. ठीक है. सपोज 18 डिग्री आपका ए है या एक्स, तो 36 डिग्री आपका 2a हो जाएगा और 54 डिग्री आपका 3a हो जाएगा. और यहाँ पे 36 प्लस 54, 36 प्लस 54 अगर आप सेम करोगे, हाँ इट इज 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है करिश्मा. इट इज 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, राइट. सो हाँ यस अभिराम, दैट ओनली. अब यहाँ पे आप 18 डिग्री, सॉरी, अगर आप 36 डिग्री प्लस 54 डिग्री करोगे, सो इट इज योर 90 डिग्री, isn't it? So 36 plus 54 is your 90 डिग्री. तो सबसे पहले आप यहाँ से आइदर 36 या 54 निकाल सकते हो, किसी का भी. एज फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं साइन ले रहा हूँ दोनों जगह. सो देयरफॉर साइन 36 प्लस 54 इक्वल टू साइन 90. चलो व्हाट इज साइन 90? 1. वी ऑल नो. Now sin 36 plus 54. So this will be sin 36 cos 54 plus cos 36 sin 54. Isn't it? Okay. हाँ.
फिर अब आप यहाँ पे उसको कन्वर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? सो अगेन दैट ओनली 36 प्लस 54 इज 90, सो cos 54 तो मैं लिख सकता हूँ cos 90 minus 36, because 90 minus 36 is 54, so it is sin 36. so यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर 36 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे भी आपका फिर cos स्क्वायर 36 नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करके साइन 36 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर वो आप साइन 36 की वैल्यू निकाल सकते हैं, सो फ्रॉम दैट साइन 36 वी डेफिनेटली नो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos 54, बिकॉज वो दोनों सेम होंगे। और अगर आपके पास 36 है, फिर हम 18 की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग 2 एंड a फॉर्मूला, राइट। तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक है उसके लिए कि यहाँ से हम 36 और 18 डिग्री की फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया। फिर 3a वाली फॉर्मूला हो गई। नाउ अब फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन वाली फॉर्मूला देख लो। ओके, सो लेट अस कम टू अवर सेक्शन 5। सो यहाँ पे 4 ट्रांसफॉर्मेशन है और आपको वो 4 टू 8 फॉर्मूला याद रखनी है। तो पहले याद कैसे रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आज डेरिवेशन नहीं देख पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं उतना, और उसका डेरिवेशन कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो पहले फटाफट देख लो याद कैसे रखनी है, क्योंकि उसके बेस से बाकी के क्वेश्चन आप कर पाओगे घर से, ठीक है, या उसका डेरिवेशन आसान है, ठीक। सो सबसे पहले फॉर्मूला जो है आपकी वो है समझना, साइन